the IT field, IT companies. So you must know what NASSCOM is, right? So a big thanks from the institution to NASSCOM for bringing to our campus such wonderful speakers. Specifically today we are having a lot of people coming from NASSCOM to give you all sessions and understanding as to what's happening in the industry and what are the expectations of the industry. Talking about today's speaker, Mr. Vipul, he's come up with a very unique concept called as low code, no code. Okay, so the word itself, English, what is the session? English proficiency. So think about it, low code, no code. And you all are sitting over here to go and code. But there's a concept which says low code and no code. Right? Without saying much, I'll hand over the session to Professor Alafia and she can take it ahead from that. Thank you. Good morning to everyone present over here. We are having our next guest, Mr. Vipul Parekh, sir. Sir is working in company name Virtual Flat Software Private Limited and have IT experience of 22 years. His company is running since 20 years. He is having few corporate clients, that is Tata, IDBI, ICICI, ILNFS, Primal, Imami, Camlin, Mahindra and Mahindra, Microtech, Okaya, Pigago, etc. Sir has 20 plus years of experience in custom software development field. He has a hunger to do something bigger in software field. The consistency in learning made him an avid reader with 1,000 plus books, also called as movie buff among his friends. He is always looking for something which is new and best. Whether it's doing a new research in software technology or changing management policies in his companies, he has never worried about the challenges or even failures. Known for his enthusiasm for making the coolest and best company, Vipul constantly learn and innovate strategies. I would request Vipul sir to please come up on stage. Dr. Nita ma'am to please felicitate sir. I would request sir to please start the session. Thank you. Hello. Can you hear me? Yes. Great. So, name is Vipul Parekh. आपने पढ़ लिया होगा. The company name is Virtual Flat Software Private Limited. So, पहले तो ये बता दूँ यार, ये मेरा पहला सेशन है. You guys are more experienced than me. So, मैं थोड़ा nervous हूँ. So, please help me to make this, आपको थोड़ा याद रहना चाहिए कि यार ये मजा आया था. कोई ज़्यादा टेक अवे नहीं होगा, लेकिन मजा ज़रूर आना चाहिए. That's a key word. So rather than यहाँ आजकल है ना इंडिया में सब पेरेंट्स ले लो, सोसाइटी ले लो, फ्रेंड्स ले लो, सब हमारे मुन्ना भैया जैसे हैं. पढ़ाई कर लो, ये संभालो, सब यही ज्ञान देने वाले हैं. So मैं और इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता. So let's be very informal, let's be very casual. किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी सवाल है, कोई भी है, nonsense questions are always most welcome. So कभी भी हाथ खड़ा करके या खुद भी खड़ा होकर सीधा चालू होना, कोई प्रॉब्लम नहीं. Because I am coming from a non-conventional background. You guys are very lucky. You have such fantastic setup. Like genius teachers, इतना management है, सब कुछ है. By the way, मेरा background ये कि मैं सिर्फ 10वीं पढ़ा हूँ. Software, computers खुद सीखा हूँ. I mean it's very common in IT यार. Okay, so आप top 10 billionaires ले लो, वो कोई पढ़े लिखे नहीं है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें नहीं हूँ मैं. एटलीस्ट वहाँ पे हूँ कि हाँ चलो वो भी नहीं पढ़ा तो मैं भी नहीं पढ़ा, बस उतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है. सो लेट्स बी वेरी कैजुअल. ठीक है. सो द सब्जेक्ट इज लो कोड नो कोड. तो जब नए आईटी में आए थे ना, तो हमको रात को ना कैटरीना के सपने नहीं आते थे. हमको .NET, जावा, पाइथन इसी के सपने आते थे. और हमको लगता था कि यार मैं बस जावा में वो लूप घुमाना सीख जाऊँ
या मैं प्रोसीजर से वैल्यू पास अगर कर दूं तो बस खत्म, मेरी निकल पड़ेगी। तो ये बहुत साल ये रोमांस रहा, 1-2 साल में फिर खत्म हो गया, समझ में आ गया कि यार यहाँ पे तो रोज नहीं हीरोइन आ रही है, मेरे सपने देखो गया। सो फिर एक चीज समझ में आती है कि बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, टिपिकल गुजराती बनिया फैमिली से आया हूँ, तो हमको तो एक ही चीज सिखाई जाती है कि भाई कुछ भी करो, पैसा लेके आओ, एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए सबको, ठीक है। तो ये सब रोमांस टेक्नोलॉजी का ठीक है यार, 1-2 साल टिका, फिर हमको समझ में आया कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे, तो पैसा कमाने आए यहाँ पे। तो अब पैसा कैसे कमाया जा सकता है? सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे कोई भी फैक्ट्री ले लो, कोई भी कुछ भी बना रहा है, जैसे माइक बना रहा है अगर कोई, तो वो फैक्ट्री चला रहा है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर दुनिया में, मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, वो माइक बनाता है, फर्क कुछ नहीं है। 2 ही तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के। एक होता है कि मैं मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दूँ विद वॉट एवर रिसोर्स आई हैव, ठीक है। मतलब अगर मैं ये दिन में 100 माइक बनाता हूँ, इफ आई मेक 200, सो आई मेक मोर प्रॉफिट। और दूसरा ये होता है कि मैं मेरा कॉस्ट कैसे कम करूँ। अब बनिए को थोड़ी सिखाया जा सकता है कॉस्ट कम कैसे करना है, तो हमको आता ही है। अच्छा, आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? सब आईटी में जाने वाले शायद तो एक ही कॉस्ट है, सैलरी, एक ही कॉस्ट है। सॉरी, आज मैं बहुत ज्यादा चीजें ऑपोजिट बताऊंगा जो शायद आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, बट दैट्स अ हार्ड रियलिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। अब तक ऐसा होता था कि यू नो वी यूज्ड टू ब्रैग आईटी में, मतलब अगर मैं किसी फैमिली फंक्शन में गया, शादी में, कहीं पे भी, तो हम लोग ऐसा, भाई हम आईटी में, हम फ्यूचर हैं, हम टेक्नोक्रेट्स हैं। हमने देखो टैक्सी वालों को घर पे बिठा दिया, व्हाई? बिकॉज वी बॉट ओला उबर, डिसरप्शन। फिर हमने क्या किया? हमने होटल इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया, व्हाई? बिकॉज वी बॉट ओयो, एयरबीएनबी। प्रॉब्लम ये हुआ है कि नाउ द गन्स आर पॉइंटिंग टू अस, कि अब हम आईटी वाले भी घर पे बैठेंगे, व्हाई? बिकॉज द नो कोड लो कोड इज नाउ पिकिंग अप। तो अब तक ये जो था ना कि भाई मैं सिर्फ कोड लिखूंगा और मेरी चल पड़ेगी, वो शायद अगले 2-5 साल में ये खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट यूएस में इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। सर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मेरा हैंडराइटिंग, मतलब मैं हैंडराइटिंग से डॉक्टर हूँ बाय द वे। सो हमने शुरुआत यहाँ से की थी कि भाई कैसे कॉस्ट कम करें, सैलरी दे दे के हम लोग परेशान हो गए थे। तो अब हमने ये सोचा कि यार इफ आई कॉल माई सेल्फ एज अ प्रोग्रामर, मैं खुद डेवलपर हूँ, मैं खुद सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, और मैं खुद सुबह उठ के आई एम ह्यूमन डिपेंडेंट, मुझे डेवलपर चाहिए, एंड देन आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट फेलो। और अब तक आप आईटी में गए नहीं, उसमें अब तक हवा नहीं लगी है, बट वो धीरे धीरे हवा लग जाएगी कि आईटी में क्या होता है। सो हमने सोचा कि यार चलो, अगर एज अ डेवलपर मैं खुद को ही अगर ऑटोमेट नहीं कर सकता, तो आई डोंट हैव एनी राइट टू से दैट आई एम अ डेवलपर। तो वहां से हमने फिर सोचना शुरू किया दैट लेट अस मेक अ सिस्टम व्हिच राइट्स इट्स ओन सॉफ्टवेयर, यानी कि हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो खुद ही एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो अब इससे ना काफी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। सबसे पहला तो मेरा ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म हो गया, मतलब मुझे सुबह उठ के कोई डेवलपर नहीं चाहिए, मुझे कोई कोडिंग करने वाला बंदा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। दैट इज वन। सेकंड, सिंस अ मशीन इज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर इज मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, द एक्यूरेसी लेवल इज ऑलवेज हाई, ऑलवेज, बिकॉज वी ह्यूमंस विल डू मिस्टेक्स नो मैटर व्हाट। लेकिन सॉफ्टवेयर गलती नहीं करेगा, मतलब वो एक बोलते हैं ना लकीर का फकीर है, उसको लकीर खींच के दे दो, यू कीप फॉलोइंग दैट। और सबसे बड़ा फायदा वही पैसा। तो वी स्टार्टेड मेकिंग मोर प्रॉफिट, कि भाई जितना ऑटोमेशन करो, जितना ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म करो, जितना एफिशिएंसी बढ़ा दो, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड दिस इज प्योर कॉमर्स, मतलब इसमें कोई इंजीनियरिंग, कोई टेक्नोलॉजी, इसमें कोई किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल बुद्धि तो वो कोई पान वाला भी बता देगा, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं किया हमने ना। अब बात आती है कि अब फ्यूचर क्या है। चलो ये तो हमने कर लिया, हमको सक्सेस मिल गया, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? एक डिसरप्शन हम पे भी आ रहा है। बाय द वे, इफ यू मस्ट बी फॉलोइंग टेक्नोलॉजी न्यूज, रिसेंटली गूगल प्रोजेक्ट एक्स, दे हैव मेड अ एआई जो खुद बग्स भी फिक्स कर लेता है। सो यू कैन इमेजिन दैट हमारा भी क्या होगा, आपका तो छोड़ो, हमारा भी क्या होगा। सो ये सब आने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम करें क्या? चलो, हम सब ने सपने देखे थे कि यार हम जाएंगे, जावा सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आईटी कंपनी में जॉब करेंगे। आईटी कंपनी बोलेगा भाई रहने दो, मेरे यहाँ पे तो ऑलरेडी एक एआई है, वो खुद कोड लिख रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सो आइदर नाउ यू हैव टू चॉइसेस। एक,
या तो यू बिकम सुपर 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 स्मार्ट डेवलपर, कि वो एआई को भी बिल्ड करने के लिए तो कोई दिमाग लगेगा ना, उसको सुधारने के लिए भी किसी का दिमाग लगेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी आइदर हियर ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट, और उसका कोई सिंपल रास्ता नहीं है, मतलब रोज घर जाओ, 2 घंटा खिड़की दरवाजे मोबाइल सब बंद कर दो और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता, एवरीबडी नाउ वांट्स डोमेन एक्सपर्टीज। व्हेन आई से डोमेन एक्सपर्टीज, हमारा सी प्रॉब्लम कहाँ होता है कंप्यूटर वाले का, इसमें मैं भी आ गया। हमको ये लगता है कि बस भाई मैं कोड लिखूंगा, मैं सॉफ्टवेयर बना दूंगा ना, मेरा काम खत्म हो गया है, आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ट्रस्ट मी, नाउ दोज डेज आर गॉन। अब ऐसा होता है कि मेरे पास डोमेन एक्सपर्टीज क्या है। सो लेट्स से इफ आई हैव अ डोमेन एक्सपर्टीज ऑफ रनिंग अ लॉजिस्टिक्स कंपनी, दैट्स अ big advantage, because then I understand technology, I understand the business, and the combination is lethal, कोई तोड़ नहीं सकता। तो एक आपको ये भी करना पड़ेगा that you have to have a domain expertise in one any particular field, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो, रिटेल हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी होने दो, but then you should have that. You cannot just say that मेरे पास एक डिग्री आ गई, मुझे जावा लिखना आता है, मुझे जॉब दे दो। सॉरी, वो जमाना खत्म हो गया। ये एक्चुअली मैंने कोई ऐसा बात बता दी, जैसे गौतम बुद्ध को कैसे सिद्धार्थ होने से पहले जब देखा कि अरे ये भी है दुख, ये भी है, और सब गौतम बुद्ध बने हुए, फिर ऐसा मत करो। ओके, सो वी विल हैव क्वेश्चन आंसर राउंड, नहीं तो फिर मैं बोलता रहूंगा बाबा रामदेव जैसा, वो उसका एंड नहीं है। सो प्लीज एनीवन हैविंग क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एनीवन, एनी क्वेश्चन, डाउट, कुछ भी, डोंट वरी अबाउट कि अरे ऐसा कैसे पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने 22 साल इंडस्ट्री में बिताए, तो मैंने गुड बैड अगली सब कुछ देख लिया है। सो एनीवन, एनी क्वेश्चंस? तो मतलब सबको सब कुछ समझ में आ गया, दैट्स परफेक्ट, फैंटास्टिक। या सो अब कंटिन्यू विद द नो कोड या लो कोड। सो लो कोड इज द फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। सो वी हैव अ सिस्टम व्हिच क्रिएट्स सॉफ्टवेयर्स। ये मतलब कॉमन है, आपने खुद भी शायद किसी ने यूज किया होगा, जैसे वी यूज वर्डप्रेस नाउ, nobody learns HTML and JavaScript to make websites, we all use WordPress. So shopping cart के लिए क्या करते हैं, we use Shopify, we use Magento, काफी सारे टूल हैं, वो भी तो लो कोड ही। तो हमने क्या किया, ERP बनाने के लिए हमने लो कोड फ्रेमवर्क बनाया फॉर माय कंपनी स्पेसिफिकली। अब नो कोड जो आ रहा है ना, वो तो उससे भी ज्यादा डिसरप्शन है कि यहाँ पे लो कोड मींस यू हैव टू स्टिल राइट few lines of code, but अगर हम नो कोड की बात करेंगे तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा। It will be just like next, click next, जैसे विंडोज इंस्टॉल कैसे करते हो, next, I agree, बस उतना ही रहेगा। तो अब आपको ये सोचना है कि फिर आपको एक्सपर्ट किस चीज का बनना है। So again, my answer will always be become a domain expert। कोई एक इंडस्ट्री आप पकड़ लो, उसका डोमेन एक्सपर्टीज ले लो ना, अगेन दैट टेक्स टाइम, उसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं शुरू रहता हूँ, मैं बोलता रहूंगा और सब सो जाएंगे। यस, एनी क्वेश्चन ओवर देयर? इतने स्मार्ट है यार आप लोग। मेरा 20 साल का ध्यान 10-15 मिनट में आ गया, ये तो खत्म हो गया। एनी क्वेश्चंस? या प्लीज। सर, इतने मास ले ऑफ क्यों हो रहे हैं हर कंपनी में? परफेक्ट, बहुत सही सवाल पूछा है। मास ले ऑफ होने के ना 2-3 रीजन है। पहले ना मास रिक्रूटमेंट हो गया था, दैट इज द फर्स्ट रियलिटी। अंधाधुंध सबने रिक्रूटमेंट कर दिया था कि भाई बुलाओ, दैट इज वन। सेकंड, उसका क्या करना वो उनको नहीं पता था कंपनी को, ठीक है, बिकॉज देखो ऐसा होता है ना कि जब हवा आती है ना जोर से, तो स्किल की जरूरत नहीं, आप थैली बांध दो एक रस्सी से तो थैली भी उड़ती है। जब हवा नहीं होती ना, तब पतंग उड़ाने का स्किल चाहिए। तो आईटी इंडस्ट्री में यही हुआ दैट सिंस एवरीवन वाज ऑन अ हाइक मोड, आई मीन यू हैव सीन इन पैंडेमिक, यू नो, रोज एक यूनिकॉर्न बन रहा है, रोज कहीं तो फंडिंग हो रही है। अब क्या करेंगे वो पता ही नहीं था। अब जब जाके बैठ के सोचना शुरू किया कि यार इनको करेंगे क्या,
तो ठीक है यार निकालो, कुछ काम नहीं है। सुंदर पिचाई का स्टेटमेंट आया था that you know Google has so many employees, even Google management doesn't know वो काम क्या कर रहे हैं। So that was one answer. Second, obviously technology. Technology is disrupting itself. यानी कि लो कोड नो कोड है, AI आ गया है, जरूरत नहीं है डेवलपर्स का। And let me tell you the third most bitter answer, जो शायद आपको नहीं अच्छा लगेगा। It is the attitude of young employees. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा टारगेट है डिग्री लो और एक जॉब पाओ, जबकि वहां से एम्प्लॉयर का कोई भी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या छोटा ये हो, वहां से उनका एक्सपेक्टेशन शुरू होता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर यू आर गेटिंग अ जॉब। हमारा प्रॉब्लम है हम सिर्फ उतना ही सोचते हैं कि अरे हाँ भाई डिग्री मिल गया, जॉब मिल गया, बस खत्म हो गया। नो, नाउ यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट एक्स्ट्रा इज, मेरा मैडम के साथ वही बात हो रहा था, दैट इज एटीट्यूड। नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, नथिंग टू डू विद स्मार्टनेस। ट्रस्ट मी, आज जितनी भी बड़ी कंपनी के जो टॉप बॉसेस बने हुए हैं मैनेजमेंट में हैं, दे आर नॉट सुपर स्मार्ट पीपल, दे आर नॉट सुपर टेकीज। वो सिर्फ एक ही चीज से वहां पे पहुंचा, दैट इज एटीट्यूड, व्हिच लैक्स अ लॉट इन आईटी, लॉट। एंड एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे पता है, जब हम रिक्रूट करते हैं तो हम वही देखते हैं कि भैया तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, तुमको नहीं आता, जावा नहीं आता, डॉटनेट नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इट्स ओके। स्किल कैन बी लर्न, यू कैन बी स्किलफुल एनी टाइम, ओवरनाइट आल्सो, वो सब कुछ हो सकता है अगर एटीट्यूड ही नहीं है तो। एंड ट्रस्ट मी, अब ऐसा टाइम आ गया कि नोबडी लाइक्स टू बिकम अ बॉस। ट्रस्ट मी, किसी को बॉस नहीं बनना है, क्योंकि बॉस बनने का नौकरी है ना सबसे गंदा है। आई कॉल हिम, बोलते ना वो हवलदार जो डंडा लेके बंदोबस्त में खड़ा होता है, इकड़े नहीं उधर जा, ऐसा वो नहीं करना है किसी को भी। Everybody wants freedom. The employee wants freedom, the employer wants freedom. So that's the reason why either you become system dependent, or if you are becoming a human dependent, then make sure that that human has a right heart. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ माइंड के पीछे दौड़ रहे हैं। माइंड तो यार वो तो AI खुद लगा ही देगा, क्या जरूरत है। So it's all about the attitude. Sorry, I'm going like थोड़ा अलग मैं सब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, but then yes, this is the problem. और बाय द वे ये लो कोड भी इन्वेंट करने का या जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, इसका रीजन भी यही था, बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग पीपल विद द राइट माइंडसेट। जब हम बोलते हैं कि भैया घर पे जाके क्या करते हो, तो या तो यही होता है, रील्स होती है, शॉर्ट्स होते हैं, और क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं नहीं घर पे जाके पढ़ाई करना पड़ेगा। अब पढ़ाई का नाम सुनते ना बेचारे के तोते उड़ जाते हैं, अरे यार सर 4 साल कैसे बीता है हमको मालूम है इंजीनियरिंग, अब हमको वापस बुक हाथ में थमा दे दो। सॉरी बट दिस इज हार्ड रियलिटी। यू हैव टू कीप रीडिंग, कीप लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। और जब मैं बोलता हूँ कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, मतलब वो दोस्त के साथ बैठ के आज मैंने बहुत इंटेलिजेंट बातें की, वो नहीं। एक्चुअली खिड़की दरवाजे मोबाइल बंद करके हाथ में बुक लेके पढ़ो, एक्चुअली पढ़ो। दिन के 2 घंटे मिनिमम पढ़ो, मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, बिकॉज दैट्स व्हाट आईटी इंडस्ट्री नाउ वांट्स यू। दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई हमारे पास कोई सुलझा हुआ बंदा है, ना कि सिर्फ एक जॉब ढूंढने वाला बंदा है कि हाँ सर मुझे जावा आता है, मुझे जॉब दे दो। वो नहीं होने वाला है। शायद मैं नहीं तो मेरे बाद कोई भी और ज्यादा डिसरप्शन लेके आएगा टेक्नोलॉजी से। आप क्या करोगे फिर? आई होप यू गॉट योर आंसर। एनीवन एल्स? Please. How far India is for at what? Yeah, so यहाँ पे इंडिया US में by the way the tsunami has already arrived. So before awarding any project in US, they do analysis that whether this project can be developed in low code, no code or not. They are even ready to get failed 2-3 बार. Why? Because the amount of efforts, money, time is almost 10x compared to the traditional way of making software. So they are ready to take their risk. ठीक है, 1-2 बार फेल भी हो गए, still will save money, will save efforts, will save time. इंडिया में आप मेरे जैसे और लोगों को देखोगे अगले 2-3 साल में, तो ये यहाँ पे 100% आ रहा है। एंड दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स, मतलब इसमें कोई टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप समझ के चलो कि
until unless you are not worth, let's say if you are taking 1 rupee salary, if you cannot produce 5 rupees, तो भाई आपके लिए कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है रिप्लेस करने के लिए, that is for sure. And if you can like quote 1 crore rupees for 1 day, best, you are irreplaceable. कोई टेक्नोलॉजी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, but then yes, वहां तक पहुंचना आपको ही है. And again, that can be only achieved by keep constantly reading, constantly updating. तो आ रहा है अगले 2-5 साल में, यहाँ पे भी हो जाएगा, ये सुनामी आ जाएगा यहाँ पे. या एनी क्वेश्चंस? So what about privacy? सॉरी, What about privacy? प्राइवेसी ऑफ, मतलब data is the next oil. Yeah. ऐसा बोल रहे हैं. हाँ So इसके पीछे रैंसम अटैक्स भी तो बहुत सारे होंगे. जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा तो रैंसम अटैक. हाँ वो हो रहे हैं. तो और इंडिया का- सीरियसली व्हाट यू से राइट, अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आया था, डेली 100 करोड़ का लॉस होता है बैंक्स को, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, बिकॉज ऑफ द डेली साइबर अटैक. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो जो हमारे साथ होता है ना कि मेरा यूपीआई चला गया, वो दैट इज सेपरेट. दिस इज जस्ट प्योर अटैक ऑन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, डेली 100 करोड़. तो ये तो हो रहा है. आई मीन पहले डाकू थे, अब साइबर ये अटैकर्स आ रहे हैं. कोई फर्क नहीं है, आई मीन यू नो ह्यूमंस ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए. एनी अदर क्वेश्चन? या यू, हाँ प्लीज. सर डोमेन एक्सपर्टीज कौन होते हैं इंडस्ट्री में, वो क्या रोल परफॉर्म करते हैं? सॉरी कैन यू जस्ट बी लिटिल लाउड? सर डोमेन एक्सपर्टीज होते कौन है एक्चुअली, एंड उनका इंडस्ट्री में रोल क्या रहता है, वो क्या रोल परफॉर्म करते हैं? सो डोमेन एक्सपर्टीज, ओके, इसको मैं ऐसे जवाब देता हूँ. सो लेट्स से यू बिकम एन इंजीनियर, आपने .NET जावा ये सब सीख लिया प्रोग्रामिंग, ठीक है. अब आप जाके करोगे क्या? सो देयर विल बी समवन who is going to tell you that okay, you make this for me, you make this app for me or this software for me, ठीक है. तो अब वो जो बता रहा है ना, that fellow is a domain expert because he knows that business कैसे चलता है. So when I say domain expertise, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा रिटेल शॉप चला रहा है, उसको पता है रिटेल शॉप पे चैलेंजेस क्या है, उसको पता है कि कस्टमर किस तरीके से आते हैं, उसको पता है कि फुटफॉल्स कैसे बढ़ाते हैं, कन्वर्जन रेट क्या होता है, पर स्क्वायर इंच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है. ये सारे शब्द आपको सीखने पड़ेंगे इफ यू वांट टू बिकम अ डोमेन एक्सपर्टीज. सिर्फ कोडर बनने से अभी कुछ नहीं होता, क्योंकि क्या करेगा कोड, किसके लिए करेगा. Vipul, can I add something here? So what Mr. Vipul wants to basically explain over here about domain expertise is, if you observe our own institution, there are two, main areas where the institution is working on, and most of the activities are geared up to that. One of them is healthcare, and the other one is, that's sad you don't know about it, it's agriculture, right? Both the domains of healthcare and agriculture are never dying domains. You always require food, and you always want to get yourself checked up at some point of time in your life. Now when Mr. Vipul is saying domain expertise, I can quote a small example over here. Let's say you're an IT expert in let's say data analytics, and you want to work in the domain of agriculture. Now agriculture again by itself is a very, very vast domain. Currently, if you see the situation of global warming, are you all aware about it? Right? So agriculture is a domain that is a sink and a source of carbon emissions. The entire story of global warming depends upon carbon emissions, right? So agriculture is a domain of it's a giver and taker of carbon emission. If it is taking, it is good. If it is giving, it is still good a little bit. Right? You'll come to know about this thing, maybe if I can have a session with you all to explain that. But coming to the point about domain expertise, you are a data analytic person and you want to work in the agriculture field. If you want to reduce the carbon emissions, there's something called as soil organic carbon. The amount of carbon that the soil extracts from the atmosphere depends upon the crops that are being grown by the farmer. Are you getting it? So you require to have knowledge about what are crops,
what is soil organic carbon and how can you calculate that soil organic carbon by using various methods, maybe for example IoT, which is a part of your course, and then how can you use the data captured by your IoT sensors to analyze it and to give some right outcome to the farmer and to the society. Right? So for that you have to have the domain expertise. Go to the farm, work with the farmer, understand what's happening over there. That is what I suppose Mr. Vipul has to say. One, just to add one funny incident. So one of my friend, when I checked his LinkedIn profile, so he mentioned that he is now a data scientist. तो मैंने उसको तुरंत फोन किया, बोला यार तू साइंटिस्ट बन गया, डेटा साइंटिस्ट, क्या बात है, करता क्या ये बता. He was like, we do data analysis, do predictions, ये वो सब बड़ा बड़ा. बोला ठीक है, अब मुझे एक बात बता, सुबह कितने बजे ऑफिस पहुंचता है? 10 बजे. ठीक है, अब बता 10 बजे पहुंच के तो एग्जैक्टली करता क्या है? फिर उसने मुझे बताया कि हम लोग है ना रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं डेटाबेस से. ठीक है, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करते हैं? क्वेरी, आई एम श्योर आप काफी लोगों को क्वेरी पता हो. सेलेक्ट क्वेरी मारो, ज्वाइन करो, ये करो एंड यू प्रोसेस द डेटा एंड फिक्स इट आउट. तो मतलब ठीक है, तो ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो क्वेरी है. फिर समझ में आया, फिर मैंने उसको और एक सवाल पूछा कि पहले मुझे ये बताओ, तुमको किसने बताया कि ये रिपोर्ट बनाओ? बोला हाँ, वो तो क्या है कि जो डोमेन एक्सपर्ट है वो हमको आके बोलते हैं कि हमको ये डेटा चाहिए इस तरीके से. तो बोला भाई देन वेयर इज द इंटेलिजेंस? What you are doing, you are not a scientist, you are a laborer, you are a data laborer. You are just doing a labor work. दो शायद लाइनें ज्यादा लिखता होगा कोड में, और क्या फर्क पड़ता है? We cannot call him as a data scientist. एक तो इन्वेंशन कुछ नहीं कर रहा है, that is one. अच्छा, we all call ourselves proudly as a Google developers. भैया गूगल में सर्च करो, कोड मिल गया, पेस्ट करो, चल रहा है, वेरी गुड, आगे बढ़ो. Nobody is doing invention here. We all keep doing discovery. और हम अपने आप को साइंटिस्ट बताते हैं. तो ठीक है, ऐसे अभी डिमांड ज्यादा है ना, तो वो थैली भी उड़ रही है आजकल. तो उसका करियर चल रहा है, लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि ये तो लेबर वर्क है, क्वेरी लिखने में कौन सा दिमाग लगता है. सो अगेन व्हाट मैम सेज इज राइट. जब आपको पता ही नहीं है तो आपको करना क्या है और कैसे करना है, तो आप कितना भी सॉफ्टवेयर बना लो उसका कोई मतलब नहीं है. एंड वी सी लॉट्स ऑफ देयर आर लाइक millions and millions of apps daily, getting uploaded. किसको याद है, किसको पता है? Everything is dead. Why? Because जो बना रहा है उसको डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इसका मार्केट है, कैसे बात करना है, कस्टमर कैसे लाना है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, where is the gap analysis, ग्रे एरिया क्या होता है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, सब कुछ. Question. Yeah. अरे बैक बेंचेस अच्छे सवाल पूछ रहे हैं यार, वेरी गुड. सॉरी, ONDC, I think so. It has started in 3-4 cities up there. If you ask my opinion, it's never going to work. चाहे हम भले देशभक्ति के इतने भी झंडे गाड़ लें, it's never going to work. Because जो Amazon ने कर दिया है इतने सालों में, वो नहीं हो सकता. सर लेकिन वो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए हेल्प करेगा ना. देखो अगेन थिंक फ्रॉम इकोनॉमी एंगल. हम 2 मिनट के लिए हमारा जो देशभक्ति साइड पर रख दो. कोविड में हमने बहुत चाइना को गालियां दी थी, क्या हो गया? 99.99% पीपल हैव चाइनीज मोबाइल फोन्स, इंक्लूडिंग मी. कहाँ गई देशभक्ति? इकोनॉमिक्स के सामने कुछ नहीं चलता, किसी का कुछ नहीं चलता. सो ONDC, yes, it's a good initiative. It was acquired, but it's not going to work in India. Amazon ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर सकता. And by the way, हमको लगता है Amazon is an e-commerce company. No, Amazon is 100% logistics company. उन्होंने एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, that is logistics. And we cannot imagine at what scale they have gone to, what level of accuracy they have achieved. It's uncomparable. तो वो ONDC ठीक है, it's good. देखो क्या होता है ना भाई, गवर्नमेंट को भी दिखाना पड़ता है हमने कुछ किया है, तो ठीक है सर, वेरी गुड, बट वो चलेगा नहीं सारा. एनी क्वेश्चंस? या
Sir, can you guide us, like freshers, how they can develop their domain knowledge, or what could be the ways to acquire this domain knowledge? Simple, just one line answer. Take a job. Take a job. Non-IT. कोई भी job ले लो. And I will always recommend everyone to start with the smallest company. चाय का टपरी, best place to start your career. Because then you always have like upward, ऊपर ही जा सकते हैं ना, उससे नीचे तो कभी नहीं जा सकते. Yes, so that will give you domain expertise. Customer क्या होता है, customer कैसे सोचता है, demand supply ratio क्या होता है, वो सब कुछ ठीक है, उनको वो वर्ड नहीं आते, but then they do the same thing. I will recommend don't join the first step, the first career, first job of your career, should never join multinational. Because you are just a part of a big system. You are just a screw. It is replaceable. अरे ये नहीं चल रहा है, दूसरा लगा दो. But in a small company, you will be the engine of the car. You are irreplaceable. सब कुछ करेंगे वहाँ पे, झाड़ू भी मरवाएंगे, चेक डालने जाओ, मटेरियल परचेस करने जाओ, सेल्स करने जाओ, पैसा कॉलर पकड़ के पैसा कलेक्ट करने जाओ, वो भी सिखाएंगे. And that's what the domain expertise is. Desk job कभी मत करो. This is my recommendation, my personal recommendation. Don't do desk job at the start of your career. Yeah. सर अगर प्लेसमेंट में अच्छी कंपनी लग गई तो छोड़ दो. देखो हमारा अगेन ये हमारा है ना, ये कल्चरल प्रॉब्लम है. वी मेजर एवरीवन बाय कितना 3 BHK इसके पास, अच्छा कौन सा गाड़ी है, अच्छा कितना महीने का टेक होम, ये हमारा प्रॉब्लम है. वी डोंट मेजर पीपल बाय द इंटेलिजेंस. वी डोंट मेजर पीपल बाय देयर व्हाट दे आर डूइंग. जैसे वेस्ट में ये कल्चर उल्टा है, वहाँ पे पीपल डोंट लाइक टू डू डेस्क जॉब, दे लाइक टू हैव ऑन फील्ड जॉब. हमारे यहाँ पे उल्टा है कि भाई सरकारी कर्मचारी बनो, बाबू बन के बैठो, वो अच्छा है. ठीक है, इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम, उसको टाइम लगेगा, माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगेगा, बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी, ये सब प्रेशर आता है हमको. बट यस, मल्टीनेशनल यू विल नेवर लर्न एनीथिंग. यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. आई विल शेयर यू वन एग्जांपल. यू नो नेम माय कस्टमर, क्योंकि उसी का पैसा खाता हूँ, सो ज़्यादा वो रेट नहीं दे सकता. So I was sitting, so it's a Chicago-based company, Nasdaq listed company है. यहाँ पे बहुत बड़ा 4,000 square feet का तो सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस, उनके लिए छोटा ऑफिस है ये. I was talking to the India sales head. हम लोग मीटिंग में बैठे थे and suddenly his mouse stopped working. तो वो ऐसे कर रहे थे. मैं बोला सर एक काम करो ना, दूसरा ले लो, 200-300 का माउस आता है. हाँ, I have raised a complaint to my head office. शिकागो में. भाई, you are India sales head. Your salary is more than 5 figures, 6 figures. You can't take one small decision. अच्छा, अगर प्लग निकल चुका है पीसी में से, तो नीचे झुक के प्लग लगाने का भी अलाउ नहीं है. For that we have IT support, we have tech support. Call them. It's their work. They will do it. क्या सीख पाओगे आप? क्या सीखोगे आप? कुछ भी नहीं. Yes, they will pay fantastic. They will mesmerize you by their, you know, ये हमारा देखो पूरा ivory towers है, पूरा कांच का बिल्डिंग है, ये है वो है. But then, अच्छा ये सब क्यों है? क्योंकि आप अपना दिमाग मत लगाओ. You know, you just leave everything and you just become a donkey, a slave to a multinational. But again, cultural problem. हम खुद डिसीजन नहीं लेते ना, हम बोलते हैं कि इंडिया में ब्राइट टू बिस्किट सब कुछ माँ बाप तय करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है. सॉरी, आई एम गोइंग टू ऑफ ट्रैक. या प्लीज. which field will cover more about automation and I think this will create some IT obviously. specifically which field we could learn about a specific language which will cover regional language. देखो आप है ना, ये सो आप क्या कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि पहले मैं कोड लिखना सीख लूंगा या कोई टेक्नोलॉजी सीख लूंगा, then I'll learn a domain expertise, then I'll, you know, like solve some problem. No, don't do that. अगर आपने हम सब ने शार्क टैंक देखा, कश्मीर मेरा फेवरेट है. One very common thing, if you just observe Shark Tank very closely, हमको ऐसा लगता है कि यार उसने
क्या सोल्यूशन ढूंढा है, इसने बहुत सही प्रोडक्ट बनाया है। नो, दे एक्चुअली स्टार्टेड रिवर्स, दे आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहला तो डोमेन एक्सपर्टीज ले लो। सो वंस यू वर्क इन अ पर्टिकुलर डोमेन, जैसे मैम से एग्रीकल्चर, कितने प्रॉब्लम है यार एग्रीकल्चर में, अभी भी फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स मैच नहीं कर रहा। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। अरे भाई हम इंडिया में यार, हमारे प्रॉब्लम की कमी है क्या यहाँ पे इंडिया में? तो पहले डोमेन एक्सपर्टीज ले। Then you think that okay, now I have a domain expertise, I know what is the problem, now let me try to solve a problem. उसके लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। अरे यार बहुत घूम रहे हैं मेरे जैसे मार्केट में आईटी वाले। Don't run behind technology, run behind the problem. Problem identify कर लो, go reverse. Yeah. Any question? Yeah. How to identify a problem? कूद जाओ। देखो मैं ये नहीं यहाँ पे लेट्स से मैं तो सॉफ्टवेयर में हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता फैक्ट्री चलाने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का ड्राइवर जो है वो डीजल चोरी करता है, मुझे नहीं पता। दीज आर प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो वो तो मुझे तब पता चलेगा ना जब मैं वहां पे एक्चुअल काम कर रहा हूं। तो वो बाहर से तो कभी पता नहीं चलता। कोई भी जिसने मेरे जैसा आईटी में कितने भी साल बिताए, वी कैन नेवर बिकम अ डोमेन एक्सपर्टीज, लेट मी बी वेरी क्लियर। कभी नहीं बन सकते। यस, वी आर जैक ऑफ ऑल, वी आर जैक ऑफ ऑल, वी आर नॉट डोमेन एक्सपर्ट। तो पहले जॉब ले लो, छोटा कंपनी का, नॉन आईटी। भाई बैक बेंचेस, हाँ सर AIML हर इंडस्ट्री इंस्टॉल करके यूज तो नहीं कर सकती, बट जो छोटे स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप कंपनीज है, उनके लिए AIML तो बहुत एक्सपेंसिव चीज होता है। या उसको टाइम लगेगा। हम जितना हाइप कर रहे हैं ना AIML को कि कल सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। It'll take time, it'll take time. And see, India being such a diverse nation, ठीक है, मतलब इंडिया का तो छोड़ दो, मेरे घर पे माय फादर स्टिल बिलीव्स इन पासबुक, वो जाते रोज बैंक में पासबुक अपडेट करवाने जाते हैं, ठीक है। तो भाई उन तक AIML आने में तो और 20 साल लग जाएंगे। तो ये AIML आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट देन हम जिस स्पीड से सोचे उतना स्पीड से तो नहीं आएगा, और वो स्केल पे नहीं आएगा। बिकॉज सी अगेन, इंडिया में कितनी कंपनियां हैं यार, बहुत कम है। I mean, we can literally count। हम लोग यूएस नहीं है, we are not a developed nation। अभी भी कितने बोलते हैं ना वो रेडी पटरी वाले, कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, I call them entrepreneurs। मुकेश अंबानी, उनमें कोई फर्क नहीं, इनफैक्ट दे आर टेकिंग बिगर रिस्क। सुबह 500 रुपया जेब में लेके जाते हैं दादर स्टेशन, भाजी खरीदते हैं, दे आर टेकिंग अ रिस्क। मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है, बोरीवली स्टेशन आके 800 रुपये में बेचते हैं, 300 रुपये का नेट प्रॉफिट। दे नो व्हाट प्रॉफिट दे आर मेकिंग। कितने स्टार्टअप को पता है उनका बिजनेस प्लान क्या है? नहीं पता। कब प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं पता। अगेन गो टू द ग्रास रूट लेवल पे जाओ, वहां पे जॉब करो, यू नो, अंडरस्टैंड द डोमेन, किस इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, कैसे काम करता है बिजनेस। दैट्स वेयर द इंटेलिजेंस लाइज। If you don't have any questions, then we can stop the session here. Yeah. So, I suppose out of all the sessions which have happened up till now, this was, at least for me personally, a very mesmerizing session. Something that brought, in front of us very, bitter truth. Okay, but then, as an individual, you go back to your first session and tell your mind that you're still going to stand strong, right? In today's world, there's something called as agility. English, proficiency. So if you are agile, if you understand the meaning of the word agile, no matter what comes, you will still stand strong and you'll move ahead.
Okay, so you require to change with the circumstances. So find there's something that's new coming up. It's a challenge for you. So fight against it. And there's nothing in this world where there isn't an answer for it. Okay, so we are really very grateful to you, sir, that you came and gave such a wonderful session that says low code, no code, and they all took admission for MCA कि हमको जाके coding करना है. But then see, the low code that they have developed also requires programmers. But those programmers are the ones who, all of you can fit into that, provided that you think in the right direction, like what has been given as an input that you study every day. Life is not easy, you know, कि डब्बा पैक किया, come here, enjoy with friends, somehow, you know, give the exam, copy करो. Your placements are happening, your seniors are appearing for placements, and it feels so saddening that being IT professionals, you are copying during the placements. And that's what sir is talking about, attitude. People want, you know, to work with people who are truthful, who are, you know, dishonesty is nowhere there in their DNA. Okay, so that is what the industry is looking out for, not people who are extra smart, you know, who can write code in 5 minutes, 10 seconds. That's not what they want. That's rightfully said, you can become like that over a period of time after working there. But then what is required is your inner good self, your holistic self. Okay? So we are really grateful to you, sir, and students have picked up quite good points. I trust all of you all, right? And they are there, you know, saturated in your inner self, and you're going to make use of them as you proceed ahead in life. So with this, we'll end the session. Professor Alif here, do you want to give special? Thank you. Thank you.